टैक्स में कटौती की बात मान When you assume leadership in 2014, India had invested $6 billion फायदा ये हुआ over its entire history since our freedom in 1947. Under your leadership tenure, under your vision, India has already mobilized and invested $8 billion. When you assume leadership in 2014, the Nifty stood over its entire today, it stands at an astounding 23,000, reflecting the confidence of investors, entrepreneurs, and citizens across our nation. And perhaps the most remarkable thing, according to me, when you assume leadership in 2014, that 23% of our population that is investors. That number has been cut in our nation, and with 250 million people lifted out of poverty. This is not just a statistic, it is a story of families fighting hope, of children coming again, and the nation reclaiming that number has been cut in our nation. Honorable Prime Minister, you represent hope, you represent aspiration, and today, families across India feel empowered and promise of better tomorrow. Under your leadership, the world no longer views India as an emerging power. It looks to us as a leader of global stars. You have set a benchmark for developing India, combining economic progress with dignity tomorrow, influence with conviction, and balancing strength with humility. Honorable Chief Minister, under your visionary guidance, Rajasthan is undergoing a historic transformation. The issuance of 25,000 appointment letters and the ambitious goal of creating 4 lakh jobs is a testimony to your commitment to empowering focused generation. Your vision for doubling the state GDP in the next 5 years gives us immense confidence to further expand our investment in this. Let me now take this opportunity to outline some of our investment plans. The Adani Group plans to invest over ₹7.5 lakh crore in the next 5 years across various sectors of the state economy. With over 50% of this investment being made through the electric power elaborate investment plan, we plan to build the world's biggest integrated clean energy ecosystem, involving 100 gigawatts of renewable energy, 2 million tons of hydrogen, and 1.8 gigawatts of pumped hydro. These investments will turn Rajasthan into an oasis of green jobs. Beyond energy, Rajasthan is critical to our ambition to become India's largest cement company. We will set up an cement plant to build additional capacity of 6 million tons per annum. In addition, there are other investment plans such as developing a world-class facility at Jaipur Airport, multimodal logistics parks, and ideal to support your transformative plan. Honorable Chief Minister, as I conclude, let me reaffirm the Adani Group's commitment to Rajasthan. We look forward to working with you to help shape a future that not only honors Rajasthan's legacy, but also sets a new benchmark for your state's timeless legacy and boundless. As I conclude, we look forward to working with Thank you very much, Mr. Adani, for your work on investing और अब और आगे बढ़ रही है। 3,000 से मैं मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इच्छा है कि 25,000 राजस्थान में पूरे बनने के लिए वादा किया है
2 साल के अंदर 5,000 बच्चे और महिलाएं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं भरतपुर राजस्थान में पैदा हुआ, उसके बाद बचपन और जवानी बिहार में गुजारी। मेरी इच्छा है कि मेरी माता जी मनस्थली राजस्थान में 85 साल पहले हॉस्टल में senior officials of the administration, friends from industry, very good morning to all of you. प्रधानमंत्री जी आज और कभी हार न मानना, ये सभी गुण हम राजस्थानियों में हैं। मैं आज यहाँ अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक प्रकार से मेजबान के रूप में यहाँ की महिलाओं की राजस्थान मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं It feels truly special to be here in Rajasthan, a land that holds a very deep connection to my roots and my heritage. And although I have never lived here, Rajasthan has been a big part of my family conscious. As some of you may know, my great-grandfather was a patriarch of whole roots, and he was born and my roots and his legacy. And although I have never lived here, rooted deeply in this land, continues to resonate in the very spirit of as some of you may know, from our roots in Pilani, we have grown into 65 million global economy with a presence in 41 countries across 6 continents. It is humbling to realize that this journey started here just 300 kilometers away. A journey shaped by a vision that business ultimately must be, of course, my family's relationship with Rajasthan, of course, extends far beyond business. बीसवीं सदी की शुरुआत में मेरे परिवार द्वारा शुरू की गई इस जर्नी की बात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान which Pilani has gifted thousands of families to India and which Pilani today counts amongst over 6,500 founders and co-founders of startups across the world. 13 ventures which Pilani has gifted either unicorns or electrons and only appropriate that now Pilani is widely as India's another over 6,000 business and beyond are successful in our search of the power of this soil. Essential to remember and progress about the strength of the primary wisdom embedded in our culture, but progress that honors Paddy's tradition of wild wisdom, that there is been no one better and as balanced these two aspects in our society. And in our own way, we have stayed connected with our roots. Today, 6 of our businesses India stands in the middle of a transformative venture, but one that honors our heritage across our and the world acknowledges that human investment behind this technology standard to the power of this transformation. We take great pride in having contributed to this evident India's manufacturing of the vision and the cement business outlet has capacity over 20 million tons a year in Rajasthan. India has just investment about 1.8 greater than total capacity of the United States. Our telecom business in the past decade under your leadership is 800 subscribers over 11,000 sites, 10,500 kilometers. And you are new leadership in 2014. India had a fascinating industrial oil massive capacity good for its entire business. Across our businesses, we are committed to significant scaling up under your vision. India has already mobilized over 1,500
8 trillion. Next 10 years by expanding cement, renewables, telecoms, and in fact, we are looking to invest around 60,000 crores in renewable development alone to take more than confidence of investors in cement and transport 10 million tons of capacity our nation and as an the most remarkable according to there are small manufacturing हमारा निवेश एक तरह से हमारा that number has been लोगों पर और 250 million people lifted out this is not just a Rajasthan, it is a story of families fighting हमारा निवेश and eradicating poverty and elevating standard of living vision that inspires you represent aspirations and today families across India rise in poverty of poverty and the promise there are more better tomorrow is very thankful. First is its mineral Under your leadership, the world no longer views India it looks to us as a leader who represents aspirations. As India is a benchmark for developing combining economic progress with dignity, influence with conviction and balancing Second is the perspective. In many ways, Rajasthan is India under your visionary guidance. Rajasthan is undergoing a historic development of issuing 25,000 appointment letters and the ambition of creating 4 lakh jobs is a testament to your commitment as no surprise that every third tourist visits India. Your vision for doubling the state's GDP in the next 5 years gives us immense confidence to further expand broader tourism and hospitality. Let me now take this renewable energy. outline Rajasthan ranks second among the Adani Group plans to invest in 7.5 lakh crores across various sectors, immense state-related economic for 18 gigawatts, with over 50% of this investment will be made in India in terms of solar plan Today accounts for 1/4 the biggest integrated clean energy solution of 7.5 gigawatts across renewable energy as a global 2 million tons of hydrogen and 1.8 gigawatts of pumped hydro foundation. These investments will turn Rajasthan into a diverse of the world's biggest integrated clean beyond energy. Rajasthan is critical for ambition for becoming India's largest cement plant. By adopting a even better more sustainable approach, additional capacity of 6 million tons per annum. In addition, there are other investments plans such as developing a world-class facility at Jaipur Airport, multimodal logistics parks, and even significant as I conclude, let me reaffirm the other day a journalist from a leading we look forward to working with you for my on the future that not only honors Rajasthan's legacy but also sets a new benchmark for your timeless legacy. हमारे राज्य के ऐसा Thank you. Let me reaffirm this is my plan. The other day a journalist in which competition we look forward to and I believe that this achievement has been set in motion by your vision of हमारे राज्य के and every state prosper India. Before I conclude, I have a simple message for all the global investment and Rajasthan is ready. Are you set? पधारो हमारे देश निवेश करो हमारे देश. Welcome to Rajasthan and invest in Rajasthan. Honorable Prime Minister. बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का एंड ऑल्सो शेयरिंग मैसिव एंड इम्प्रेसिव And now inviting Shri Anand Mahindra ji, Chairman of the
Strength from industry. A very good morning to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का एंड ऑल्सो शेयरिंग मैसिव एंड नाउ इनवाइटिंग श्री आनंद मैं आज यहाँ अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक प्रकार से मेजबान के रूप में उपस्थित हूँ. वेरी गुड मॉर्निंग. मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आई एम हियर एज एन एम्बेसडर ऑफ Honorable Governor and respected Chief Minister. It feels truly special to be your guest and dignitaries and hosts from all over very deep welcome to the rising sun and all more appropriately, though I have never lived here, respected Prime Minister. I am here as an ambassador of my Honorable Governor and Jaipur as some of you know, my great grandfather Raj Vichya बाउलियों की तस्वीर को मेरा यही welcome on है. अब आप सोच रहे होंगे रेगिस्ट्रेटली एक इन्वेस्टर समिट है जो बाउलियों की बात नहीं कंटिन्यू. दरअसल आज के लिए ये तस्वीर बहुत जो ये बाउलियाँ इनोवेशन का राजस्थान के लोगों की विशेषता समिट है. हम लोग ये बाउलियाँ इस महान राज्य के इतिहास दरअसल आज की लेकिन इनमें राजस्थान शेप उज्ज्वल भविष्य की ये बाउलियाँ इनोवेशन का आज माय फैमिली इस समिट में उसी इनोवेशन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शादी की शुरुआत में मेरे परिवार मौजूद होने के लिए गर्व की बात है. भारत उस Now the people of Rajasthan for millennia, my family have benefited from usi innovation which belonging has given emerging victorious on each occasion. So it's no coincidence that Rajasthan innovative people also spread around the country and the world and as much as the country and the world. So the height of less which I alluded to in Julian now, which I hope might be visited as well as get a chance to those elements are a perfect example business and beyond throughout ancient times, people, country and innovations in Rajasthan how the water, who the climate filters the water in all in one space. Made ingenuity of the people of Rajasthan. Business and our company's history in Rajasthan has been made innovation. Today, across 4 major areas, we've been manufacturing tractors and therefore for 2002. And the world city Jaipur has become a true magnet for foreign investors. Our company's history is 143 companies having invested over 7,000 crores rupees, creating 63,000 jobs. We've been manufacturing 110,000 crores of capacity in over 20 million tons a year. And this is for all investors here wanting to come to Rajasthan. The manufacturing of services and telecom business will allow you to meet your drivers at over 11,000 sites. Club Mahindra, our sports business has 6 properties across the state. Plans to really double the investment coming year. And the manufacturing of services, our solar business has connected over 1.1 gigawatts in Rajasthan and already committed investment of over 11,000 crores to achieve an additional 2.8 gigawatts capacity. Mahindra Group has created direct employment for over 5,000 people in Rajasthan. Plans to replace over 1.6 significant over the next 5 years. 10 million tons of all in all, Mahindra's commitment to 2.8 Rajasthan remains unwavering. So to all the dignitaries and investors around the world, I close by using a local expression. मुझे नहीं देखियो राजस्थान तो जल में आगे स्टे करें. Thank you. जय हिंद, जय राजस्थान.
Vision and Wellness Rajasthan 2047. Thank you very much, sir. Share with us this deep-rooted, innovative knowledge and culture of Rajasthan and many of other plans. Ladies and gentlemen, हमारे सभी योजनाओं के संकल्पों और प्रतिबद्धताओं से ऊर्जित होकर राजस्थान जब अपनी विकास यात्रा का नया नए इनोवेट और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। हमारे अगले कदम क्या हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारे विकसित राजस्थान इसकी तरफ हम अब सभी लोग करते हैं। हमारे पंच प्रधान हमारे माननीय प्रधानमंत्री यात्रा का नया सभी की तरफ से वैश्विक स्तर में कर्मठ होकर जान बनाने जी से निवेदन करती हूँ। हमारे आप मार्गदर्शन करें, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। As we said by Mr. Adani, stand as a symbol of hope and aspiration for us. As you join us, we request you to lead us. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister Shri Narendra मार्गदर्शन करें, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। As we said by Mr. Adani, stand as a symbol of hope and aspiration for us. broader tourism and hospitality. For its renewable energy, Rajasthan ranks second among states in terms of installed capacity of renewable energy. As of early 2025, state surpassed 18 gigawatts of installed solar capacity, making it the leading state in India in terms of solar capacity. Today it accounts for 1/4 of India's capacity, large-scale solar capacity. I believe that Rajasthan is poised to emerge as a global leader in solar energy. To summarize the 4 pillars that form the foundation of Rajasthan: progress, minerals, infrastructure, tourism, and renewable energy. MITR and friend and a partner by adopting a conventional and sustainable approach, delegates Rajasthan can unlock investors and governments set up a target of doubling the state's economy from its current with $30 trillion next 5 years. I believe that Rajasthan is rising Rajasthan's top investment destination delegates significant to India's goal of becoming a $5 trillion. Prime Minister, sir, the other day a journalist from leading global publication asked me for my opinion on the investment climate in India. मैंने उनसे कहा कि मेरे 30 साल के करियर में मैंने निवेश के लिए हमारे राज्यों के लिए ऐसी कॉम्पिटिशन कभी नहीं देखी। This event planned the other day a journalist with the competition and business and I believe that this has been set in motion, sir. मैंने your vision of मेरे 30 साल के करियर में मैंने Rajasthan rises, India rises, every state before I can say with simple message for all the global investment, I believe that Rajasthan is ready. Are you saying पधारो हमारे देश निवेश करो हमारे देश. Welcome to Rajasthan and invest in Rajasthan. दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी कृषि बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का एंड ऑल्सो शेयरिंग योर मैसिव एंड इम्प्रेसिव फुटप्रिंट. Now inviting Shri Anand Mahindra ji, Chairman of Mahindra बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का एंड ऑल्सो शेयरिंग योर मैसिव एंड इम्प्रेसिव फुटप्रिंट. Now inviting Shri Anand Mahindra ji, Chairman of Mahindra. भारत का एक्सपोर्ट भी करीब डबल हो गया. Respected Prime Minister, 2014 से पहले के समय की तुलना में Respected Chief Minister, Your Excellency, distinguished guests, from all over the world. Welcome to the rising Rajasthan
summit or more appropriately Amalgam. आउटलुक की तस्वीर वेलकम टू द राइजिंग। अब आप देख रहे होंगे समिट और मोर अप्रोप्रिएटली एक इन्वेस्टर समिट है, तो बाउंड्रियों की बात क्यों होती है? दरअसल आज के लिए ये तस्वीर बहुत ये बाउंड्रियां इनोवेशन का सबूत है। अब जो राजस्थान के लोगों की विशेषता है, एक इन्वेस्टर समिट है, ये बाउंड्रियां महान राज्य रही है इतिहास में। दरअसल आज लेकिन इन्हें राजस्थान से उज्ज्वल भविष्य की ये बाउंड्रियां इनोवेशन का आज उपलब्धि। हम इस समिट में राजस्थान के लोगों उसी इनोवेशन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का यहाँ मौजूद होने के लिए हमारे लिए गर्व की बात है। ये भारत का मूल चरित्र है। Now the people of Rajasthan for millennia आज भारत की जनता क्लाइमेट उसी आगे बढ़ाने की स्टोरीज on each occasion. So it's no coincidence that Rajasthan's innovative people has also spread around the country and the world as merchants who help the country and the world grow and prosper. So the humble step well, which I alluded to in Hindi in my comments, which I hope all the overseas visitors will get a chance to see, those skeletons are a perfect example of how, as merchants, throughout ancient times, people, country and innovations in Rajasthan harvest water, cool the climate, filter the water in all in one stroke. Mark of the innate ingenuity of the people of Rajasthan are a perfect example of how our company's history with Rajasthan is indeed a long across four major areas. We've been manufacturing tractors near Jaipur since 2003. And the world city Jaipur has become a true magnet for foreign investment. Our company's history with 143 companies having invested over 7,000 crore rupees, creating 63,000 jobs. We've been generating 26,000 crores of exports since inception. And of course, we're going to welcome more. This is for more investors here wanting to come to Rajasthan for the manufacturing and services. It's a plug-and-play venue that will allow you to install your business strategy. Club Mahindra, our joint business has 6 properties across the world, with plans to nearly double that in the coming years. And of course, our solar division has erected over 1.1 gigawatts in Rajasthan and already committed investment of over 11,000 crores to achieve an additional 2.8 gigawatts of capacity. The Mahindra Group has created direct employment for over 5,000 people in Rajasthan today, with plans in place to increase this significantly over the next 5 years. All in all, Mahindra's commitment to seeing Rajasthan rise remains strong and unwavering. So to all the dignitaries and investors around the world, I close by using a local expression. ये नहीं देखियो राजस्थान तो जग में आगे के कर। थैंक यू, जय हिंद, जय राजस्थान। Thank you very much for sharing with us this deep-rooted, innovative knowledge and country of Rajasthan and many of other plans to invest in. दीदी हमारे सभी देश के संकल्पों और प्रतिबद्धताओं को उचित होकर, उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर
राजस्थान जब अपनी विकास यात्रा का नया अध्याय देखने जा रहा है और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है, हमारे अगले कदम क्या है? क्या हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारे राजस्थान इसकी तरफ हम सभी लोग करते हैं। हमारे पंच प्रधान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यात्रा का नया अध्याय सभी की तरफ से वैश्विक स्तर में गर्भवत होकर पहचान बनाने आवेदन करती हूँ। हमारे अगले मार्गदर्शन करें, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। As was said by Mr. Adani, stand as a symbol of hope and aspiration for us. As you join us, we request you to lead us. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister Shri Narendra मार्गदर्शन करें, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। As was said by Mr. Adani, stand as a symbol of hope and aspiration for us. और ना ही देश की विरासत इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी विरासत भी इसकी मंत्र पर चल और ना ही देश की विरासत और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान इसकी मंत्र रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। राजस्थान आज चुनौतियों से टकराने का नाम है नए अवसरों को बनाने का नाम है, बड़ी संख्या और समय के राजस्थान के इन्वेस्टर इस आर फैक्टर में यहाँ पिंक सिटी में एक और पहलू चुनौतियों से टकराने का यहाँ उद्योग के लोगों ने भारी बहुमत से नए अवसर बीजेपी के सरकार बनाई। बहुत ही कम समय में यहाँ भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम ने राजस्थान शानदार काम करके राजस्थान के लोगों ने कुछ ही दिन में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई। आज बहुत ही कम समय में भजन लाल जी और हर पूरी टीम ने राजस्थान शानदार काम भारत को लेकर के लोगों ने कुछ ही दिन में भारी बहुमत से बीजेपी की ट्रांसफॉर्म के मंत्र चलते हुए भजन लाल जी और भारत में जो विकास बीजेपी सरकार भारत को लेकर वो हर क्षेत्र में नजर आजादी के बाद के 7 भारत ट्रांसफॉर्म के मंत्र दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाई। उसके सामने में नजर पिछले 10 वर्ष आजादी के भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाई। बीते 10 वर्षों में उसके सामने में नजर भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज आजादी के भारत करीब डबल किया। 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से बीते 10 वर्षों में बढ़ा। दुनिया भारत का एक्सपोर्ट भी करीब डबल हो गया। बीते 10 वर्ष 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक करीब एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ। भारत का एक्सपोर्ट भी करीब डबल। सेक्टर का खर्च
बीते 10 वर्ष करीब 3 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा था। एफडीआई भी 2 गुना से अधिक। डेमोक्रेसी के दौरान डेमोग्राफी करीब 70 का डिजिटल डेटा करीब 3 ट्रिलियन रुपए से और डिलीवरी की पावर क्या हो 11 ट्रिलियन तक पहुंचा थी। ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोग्राफी करीब के लिए वर्जित, वहां महिलाएं काम कर ही नहीं सकती थी। भाजपा की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने से हर बाधा को हटाने की ठानी। आज आप देखिए, सेना के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की तैनाती हो रही है। हमारी बेटियां अब बड़ी संख्या में फाइटर पायलट बन रही है। आज पुलिस में भी बड़ी संख्या में बेटियों की भर्ती हो रही है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों को और उसकी कमान हमारी बेटियां संभाल रही है। देश में किसानों के, पशुपालकों के 1200 ऐसे उत्पादक संघ या सहकारी समितियां हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही है। खेल का मैदान हो या पढ़ाई का, बेटियां हर क्षेत्र में बहुत आगे चल रही है। गर्भवती महिलाओं की छुट्टी को बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का भी लाभ लाखों बेटियों को मिला है। साथियों, कई बार जब हम किसी खिलाड़ी को मेडल पाकर गर्व से घूमते देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उस मेडल को पाने के लिए उस खिलाड़ी ने, उस बेटी ने बरसों तक कितनी मेहनत की है। कोई एवरेस्ट पर तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाता है तो उस खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति कितने वर्षों के संघर्षों के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचा है। आज यहां जिस बीमा सखी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, उसकी नींव में भी बरसों की मेहनत है, बरसों की तपस्या है। आजादी के 60-65 सालों बाद भी अधिकतर महिलाओं के पास बैंक खाते नहीं थे, यानी पूरी बैंकिंग व्यवस्था से ही महिलाएं कटी हुई थी। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले माताओं बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए और आज मुझे गर्व है कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही
बड़ी भूमिका निभाई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिनके बैंक खाते तक नहीं थे, वो अब बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ रही है। बैंक में कैसे बचत होती है, कैसे लोन मिलता है, ये सब कुछ लोगों को सिखा रही है हमारी माताएं बहनें। ऐसी लाखों बैंक सखियां आज गांव में सेवाएं दे रही है। साथियों, बैंक खाते की तरह ही कभी महिलाओं का बीमा भी नहीं होता था। आज लाखों बेटियां, उनको बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। आज बीमा जैसे सेक्टर के विस्तार का नेतृत्व भी एक प्रकार से अब महिलाएं ही करेंगी। बीमा सखी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक LIC एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारी बीमा सखियां हर वर्ष 2.25 लाख रुपये से अधिक कमाएगी। बहनों की ये कमाई परिवार को अतिरिक्त आय देगी। साथियों, बीमा सखियों के इस काम का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई होगी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला है। विकसित होते हमारे देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल हम सभी का ध्येय है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए अति आवश्यक है। आज बीमा सखी के रूप में आप जिस भूमिका में आ रही है, उससे इंश्योरेंस फॉर ऑल उस मिशन को बल मिलेगा। साथियों, जब व्यक्ति के पास बीमा की ताकत होती है तो कितना लाभ होता है, इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं चला रही है। इसके तहत बहुत ही कम प्रीमियम पर 2-2 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाता है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोग जो कभी बीमा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उनका बीमा हुआ है। इन दोनों योजनाओं के तहत अभी तक करीब 20,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। आप कल्पना कीजिए, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने अपने स्वजन को खोया, उस मुश्किल परिस्थिति में ये 2 लाख रुपए कितने काम आए होंगे। यानी बीमा सखियां देश के अनेक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने जा रही है, पुण्य का काम करने जा रही है। साथियों, भारत में पिछले 10 साल में ग्रामीण महिलाओं के लिए जो क्रांतिकारी नीतियां बनी,
जो निर्णय लिए हैं वो वाकई स्टडी का विषय है। बीमा सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये नाम भले ही बड़े सहज से लगते हो, सामान्य लगते हो, लेकिन ये भारत का भाग्य बदल रहे हैं। खास तौर पर भारत का सेल्फ हेल्प ग्रुप अभियान महिला सशक्तिकरण की ऐसी गाथा है जिसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने का बड़ा माध्यम बनाया। आज देश भर की 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। उनसे जुड़कर महिलाओं की कमाई हो रही है। बीते 10 साल में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है। साथियों, मैं देश भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों से भी कहूंगा, आपकी भूमिका असाधारण है, आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप सभी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें हर समाज, हर वर्ग, हर परिवार की बहनें जुड़ी हैं। इसमें सबको अवसर मिल रहे हैं। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये आंदोलन सामाजिक समरसता को, सामाजिक न्याय को भी सशक्त कर रहा है। हमारे यहां कहा जाता है कि एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप से सिर्फ एक महिला की आय बढ़ती है, इतना ही नहीं है। इससे एक परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है, पूरे गांव का आत्मविश्वास बढ़ता है। इतना काम, इतना बड़ा काम आप सभी कर रहे हैं। साथियों, मैंने लाल किले से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की भी घोषणा की है। अभी तक देश भर में 1 करोड़ 15 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। ये बहनें हर साल 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई करने लगी है। सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना से भी लखपति दीदी अभियान को बल मिल रहा है। हरियाणा में तो नमो ड्रोन दीदी की बहुत चर्चा है। हरियाणा चुनाव के दौरान मैंने कुछ बहनों के इंटरव्यू पढ़े थे। उसमें एक बहन ने बताया कि कैसे उसने ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ली, उनके ग्रुप को ड्रोन मिला। उस बहन ने बताया पिछले खरीफ सीजन में उनको ड्रोन से स्प्रे करने का काम मिला। उन्होंने लगभग 800 एकड़ खेती में ड्रोन से स्प्रे दवा का छिड़काव किया। आप जानती हैं उनको इससे कितना पैसा मिला? इससे उनको 3 लाख रुपए की कमाई हुई। यानी एक सीजन में ही लाखों की कमाई हो रही है। इस योजना से ही खेती और बहनों का जीवन दोनों बदल रहा है। साथियों, आज देश में आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हजारों कृषि सखियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 70,000 कृषि सखियों को सर्टिफिकेट मिल भी चुका है। ये कृषि सखियां भी हर वर्ष 60,000 रुपये से अधिक कमाने का सामर्थ्य रखती है। ऐसे ही 1.25 लाख से अधिक
पशु सखियां आज पशुपालन को लेकर जागरूकता अभियान का हिस्सा बनी। कृषि सखी, पशु सखी, ये भी सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं है, आप सभी मानवता की भी बहुत बड़ी सेवा कर रही है। जैसे मरीज को नई जिंदगी देने में नर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, वैसे ही हमारी कृषि सखियां आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती माता को बचाने का काम कर रही है। ये प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता फैलाकर मिट्टी की, हमारे किसानों की, धरती माता की सेवा कर रही है। इसी प्रकार हमारी पशु सखियां भी पशुओं की सेवा से मानव सेवा का बहुत पुण्य काम कमा रही है। साथियों, हर चीज को राजनीति के वोट बैंक को उस तराजू पर तोलने वाले लोग आजकल बहुत हैरान परेशान हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। जिन लोगों ने माताओं, बहनों को सिर्फ वोट बैंक समझा और चुनाव के समय घोषणाएं करने की ही राजनीति की, वो इस मजबूत रिश्ते को समझ भी नहीं पाएंगे। आज माताओं, बहनों का इतना लाड प्यार मोदी को क्यों मिलता है, ये समझने के लिए उन्हें बीते 10 वर्षों के सफर को याद करना होगा। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास एक आदत शौचालय नहीं था। मोदी ने देश में 112 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनाए। 10 साल पहले करोड़ों बहनों के पास गैस कनेक्शन नहीं था। मोदी ने उन्हें उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन दिए, सिलेंडर सस्ते किए। बहनों के घरों में पानी का नल नहीं था, हमने घर घर नल से जल पहुंचाना शुरू किया। पहले कोई प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम नहीं होती थी, हमने करोड़ों बहनों को पक्के घर की मालकिन बना दिया। कितने लंबे समय से महिलाएं मांग कर रही थी कि उन्हें विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाए। आपके आशीर्वाद से इस मांग को पूरा करने का सौभाग्य भी हमें मिला। जब सही नियत से ऐसे ईमानदार प्रयास होते हैं, तभी आप बहनों का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं, हरियाणा को हरित क्रांति का अगुवा बनाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब 21वीं सदी में हरियाणा को फल और सब्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का रोल अहम होगा। आज महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शिलान्यास हुआ है। इससे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे नौजवानों को नई सहूलियत मिलेगी। साथियों, आज मैं हरियाणा के आप सभी लोगों को, सभी बहनों को फिर से भरोसा दे रहा हूं कि राज्य का तेजी से विकास होगा। डबल इंजन की सरकार तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी तेजी से काम करेगी और इसमें यहां की नारी शक्ति की भूमिका इसी तरह लगातार बढ़ती रहेगी।
आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे। इसी काम के साथ फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन में आज भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंत्र प्राप्त हुआ, बीमा सखी बनकर वित्तीय क्रांति की ध्वजवाहक बनने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपका हृदय से आभार। जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आपका स्नेह आपकी तालियों में गूंजता नजर आना चाहिए। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार फलते फूलते हैं। सीधा प्रसारण आप हरियाणा के पानीपत से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपना संबोधन जो है वो समाप्त किया है। उन्होंने वहां पर बीमा सखी योजना की शुरुआत की और जो कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही हैं अपने के लिए हम अत्यंत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका पानीपत की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट महानुभावों का भी हम सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। हरियाणा के सम्माननीय राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री और फरीदाबाद से सांसद माननीय श्री कृष्णपाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी तथा सुश्री आरती सिंह राव का भी स्वागत और यहां उपस्थित सभी अधिकारीगण के साथ साथ जनता जनार्दन का भी हार्दिक स्वागत है। देश भर से हमारे साथ 102 LIC केंद्रों से जुड़े मेहमानों का भी स्वागत और विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे महिला शक्ति का, जो आत्मनिर्भरता के महागान के लिए तत्पर हैं। यहां मौजूद हैं हजारों की संख्या। देवी और सज्जनों, कुरुक्षेत्र जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जो हरियाणा के सब देवी और सज्जनों, कुरुक्षेत्र जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जो हरियाणा के सभी जिलों में मनाया जा रहा था। गीता का संदेश तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान कृष्ण की पीतल की बहुत खूबसूरत मूर्ति भी प्रदान की जा रही है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशेष कलाकृति पराली से बनी माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, जो पराली के सदुपयोग का उदाहरण है। यानी पराली बन सकती है किसानों की आय का साधन, इसी का उदाहरण है ये कलाकृति। और अब साधन इसी का उदाहरण है ये कलाकृति। और अब मैं केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल तथा स्मृति अनुरोध करती हूं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। शॉल के साथ साथ LIC की ओर से दिया जा रहा है ये स्मृति चिन्ह, क्योंकि LIC का ध्येय वाक्य ही है जो गीता से लिया गया है, यानी योगक्षेमम वहाम्यम, यानी आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है, जिससे जुड़ी है ये कलाकृति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब देवी और सज्जनों, सभी अतिथिगण का स्वागत करने के लिए तथा इस कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करने के लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को आमंत्रित करती हूँ। Ladies and gentlemen, I welcome Honorable Minister Srimati Nirmala Sitharaman for the welcome address. तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री महोदया का। आप सबको नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब, माननीय चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी,
पूर्व मुख्यमंत्रीगण और अभी केंद्र सरकार में मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्र सरकार में मंत्री कृष्ण पाल जी और मेरे सामने बैठे हुए उत्सुकता से बैठे हुए महिला सबको मेरा प्रणाम। आज LIC के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमा सखी योजना का लॉन्च होने वाले हैं। उसके लिए और उसके साथ साथ जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी का, उन दोनों कार्यक्रम के लिए अपने व्यस्तता के बीच में हमारे यहाँ ये पधारे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं स्पेशली वेलकम करती हूँ। पिछले 10 साल में LIC के द्वारा महिला पर्टिकुलरली महिला के लिए आर्थिक सुरक्षा का काम करते हुए, वित्तीय समावेशन का काम करते हुए LIC के द्वारा रोजगार उत्पादन का बहुत बड़ा काम भी हो रही है। पूरे देश में 3,800 के ज्यादा ब्रांचेस रखते हुए LIC, उनमें से 50% से ज्यादा गांवों में गरीब और रूरल इलाके में ब्रांचेस रखते हुए बीमा के कार्यक्रम अच्छा आगे लेके जा रही है LIC। सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आए हुए जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सबको भी गरीब तबके हुए लोग को बीमा सुरक्षा देने के काम LIC कर रही है। 2017 से 18 से लेकर के 2023 तक महिला एजेंट का नियुक्ति भी बहुत किया है। 6 लाख का महिला एजेंट्स जहां 2017 में थे, वो बढ़कर के 7.45 लाख तक पहुंची है महिला एजेंट की संख्या। फिर भी 100 LIC एजेंट जहां है, वहां महिला एजेंट 28 ही है। मतलब 100 में से 28 ही महिला एजेंट्स है अब तक। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च होने वाले ये बीमा सखी प्रोग्राम का महत्व बहुत है। मैं मानती हूं ये बीमा सखी प्रोग्राम जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं, उसको महिला करियर एजेंट का प्रोग्राम भी हम बोलते हैं। उसमें महिला सशक्तिकरण के काम मद्देनजर रखते हुए 25,000 महिलाओं को बीमा सखी के नियुक्ति करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इसमें 10वीं पास किए हुए महिलाओं को LIC रिक्रूटमेंट के द्वारा एजेंट के नाम में, महिला बीमा सखी के नाम में उनको रिक्रूट करते हुए उनको एक स्टाइपेंड भी देंगे। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया। फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक स्टाइपेंड है। इसके ऊपर
महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। इसीलिए 7,000 हो पहले साल, 6,000 हो अगले साल, 5,000 हो तीसरी साल, हर महीना महिला को वो बेसिक इनकम जैसे स्टाइपेंड मिलेगा, मगर उसके ऊपर जितना होशियारी से महिला आगे बीमा बिजनेस को बढ़ा रही है उतना उनको कमीशन भी बढ़ेगा। इन 3 सालों में 2 लाख बीमा सखी का नियुक्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। इसके साथ साथ और इसमें एक और विषय है, उम्र इसमें कोई हमें रोक नहीं सकते हैं। 18 उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। 18 to 70 इयर्स महिला को इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसमें और आगे चलते हुए 3 साल के बाद भी महिला इसमें लाइफ लॉन्ग करियर एजेंट बन सकते हैं अगर इन 3 सालों में रेगुलेटर इरडाई के एलआईसी के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी दी जा सकते हैं, क्योंकि आज परमानेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पोजीशन को आना है तो कानूनन उनको एक परीक्षा लेना पड़ता है। सो स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, आप बीमा सखी भी होंगे, मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है आपको, आप आगे जाकर के डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली एलआईसी में। इसको एलआईसी के द्वारा हम इन 3 सालों में आपको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, जो कि आप परीक्षा उसके बाद आसानी से लिख सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। उसका ट्रेनिंग का जिम्मेदारी भी एलआईसी के हाथ में होगा। बीमा सखी के प्रयास और विश्वास से सबकी रक्षा और सबका विकास भी होगा, यही है हमारी उम्मीद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अनुमति से आपके नजरिया में 214 से लेकर भारत देश का विकास के लिए महिला केंद्रित इतने सारे निर्णय ले आए, स्कीम्स भी आप ले आए, और बढ़कर के विकसित भारत 2047 तक जो भारत विकसित होना है उसमें महिला नेतृत्व को इतना बढ़ावा माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्प ये है कि महिला विकास की सिर्फ भागीदारी ना बने बल्कि विकास का नेतृत्व ही करें। इसीलिए महिला केंद्रित बहुत सारे प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ले आ रहे हैं। इस साल के बजट जो जुलाई 2024 में हमने पेश किया उसमें 3.3 लाख करोड़ का महिला के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मैं इस संदर्भ में याद दिलाना चाह रही हूं, हम पानीपत में हैं जहां ऑलमोस्ट 10 इयर्स अगो 10 साल की पुरानी बात मैं बोल रही हूं, जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को इस धरती से ही लॉन्च किया। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इतना माइंडसेट चेंज करने वाले योजना निकला जो कि पूरे देश में सेक्स रेशो मतलब जन्म से ही महिला के खिलाफ इतना शोषण हो रही है उसको रोकने वाले काम किया है। आज 2022-23 डेटा हम निकाल कर देखें तो 933 महिला का बर्थ होता है बनाम 1000 पुरुषों का,
जो नंबर पहले 2014 में 918 ही था। इसीलिए वो 15 पॉइंट का बढ़ोतरी इसीलिए हुआ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतना महिला के लिए प्रोत्साहन देने वाले स्कीम्स भी ले आया। इसके बाद मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहती हूं, उसमें हरियाणा का नंबर भी इतना अच्छा बदलाव आया है। आज महिला सेक्स रेशियो दैट इज हरियाणा का 900 बनाम 1000 हो गया है। 1000 पुरुषों का बर्थ जहां होता है, हरियाणा में अच्छा नंबर 900 तक हम पहुंचे हैं, ऐसे अच्छा स्कीम्स के कारण। 2-3 विषय जरूर मैं रखना चाहती हूं, महिला केंद्रित विषय, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कोशिश के द्वारा पूरे देश में महिला का सम्मान और उनका सशक्तिकरण भी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑल इंडिया आर्म्ड फोर्सेस में हरियाणा में बहुत सारा सेवा आर्म फोर्सेस में होते हैं। उसमें चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना हो या नेवी हो, इन तीनों में आज कॉम्बैट रोल में महिला रोल एनरोल हो रहे हैं। ये पूरे माननीय प्रधानमंत्री के श्रेय देने वाले बात है। वो इंसिस्ट करके आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में महिला को कॉम्बैट रोल्स देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। आज उसके कारण कॉम्बैट रोल्स में राफेल भी चला रहे हैं महिला, और सबमरीन में भी जाने वाले हैं महिला। इसके साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि 33 है सैनिक स्कूल पूरे भारत देश में, 33, उन सब में 2022 से महिला को भी एनरोलमेंट हो रही है। हर सैनिक स्कूल में लड़की का एनरोलमेंट अभी हो रही है, थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट्स। आपको मालूम है फिनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सारे काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस के लेकर के। जन धन अकाउंट भारत देश में आज 54 करोड़ है। 54 करोड़ में से 55% महिला के नाम पर है जन धन अकाउंट, 55%। और मैं याद दिलाना चाहती हूं, कोविड के समय सिर्फ 10 दिन के अंदर कोविड का पूरे जनता कर्फ्यू लगाने के बाद 10 दिन के अंदर ही 20 करोड़ जनधन खाते रखने वाले महिलाओं को उनके खाते में सीधा 500 हर महीना का पैसा डाला गया है। ये संभव इसलिए हुआ, महिला को जनधन अकाउंट में प्रावधान दे करके महिला आज 100 में 55 महिला के ही अकाउंट है जनधन अकाउंट्स। मैं और समय नया लेते हुए 3-4 विषय जिसमें महिलाओं का संख्या बोलने के लिए कोशिश करूंगी। 50 करोड़ मुद्रा अकाउंट में 70% महिला की अकाउंट, मुद्रा लोन लेने वाले जिसमें कोलैटरल नहीं होता, जिसमें सिक्योरिटी नहीं होता, गवर्नमेंट की गारंटी के साथ वाले वो अकाउंट में 17% महिला का। फिर 75% स्टैंड अप इंडिया का लोन महिला को मिलता है। 45% पीएम स्वनिधि योजना के तहत सिक्योरिटी बिना सिक्योरिटी और कोलैटरल रहित लोन जो रेडी पटरी वाले लोगों को मिलता है, उसमें 45% महिला को मिलता है। फिर जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें 2 लाख तक कवरेज मिलता है, इंश्योरेंस बीमा का कवरेज, उसमें 43% महिला को मिलती है कवरेज है। 46% पीएम सुरक्षा बीमा योजना में महिला का मिलता है। फिर अटल पेंशन योजना का 47% महिला को ही जाता है। मैं सिर्फ इसको इतना क्लियरली आपके सामने इसीलिए रख रही हूं, एक नहीं, 2 नहीं, सेवरल प्रोग्राम्स के द्वारा महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मातृ वंदना योजना के द्वारा
हमारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत सारे फैसिलिटी करते हैं। मातृ वंदना योजना के द्वारा 3 करोड़ गर्भवती महिला को फिनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। 3 करोड़ महिला को मिला है 2017 से लेकर के आज तक। और ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत जो घर बनाया जाते हैं उसमें 100 घर में से 17 घर महिला के नाम बनाया जा रहा है ग्रामीण इलाका में। फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ महिला को स्वयं सहायता ग्रुप में एसएचजी ग्रुप जो बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें 10 करोड़ महिला को बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है। उनको 92 लाख एसएचजी ग्रुप्स बना करके उनको हर कदम उनका कैपिटल के लिए देते हैं, लोन देते हैं, मार्केटिंग फैसिलिटी उनको देते हैं, ये सब मिलती है। अंत में मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहती हूं। 3 करोड़ महिलाओं को भारत देश में लखपति दीदी बनाने के कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 2023 में हर गांव में कम से कम एक महिला लखपति दीदी होना है। इसके लिए कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उनके एनुअल इनकम साल में वो कम से कम 1 लाख रुपया तक कमाने के लिए बहुत सारे स्कीमों के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं खुशी से आपके सामने रखना चाहती हूं कि नवंबर इस साल के अंत तक उन 3 लाख के टारगेट में हमने ऑलरेडी 1 करोड़ महिला, 3 करोड़ है हमारा टारगेट, 3 करोड़ एक लखपति दीदी बनाने का। और ये टारगेट हमने नवंबर 2024 इस साल के नवंबर के अंत मतलब 6-7 दिन के पहले तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति बना दिया। 3 करोड़ के टारगेट को हम आधा 1/3 1 तिहाई ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, बाकी को जल्द से जल्द हम करेंगे। लास्ट पॉइंट, महिला को ग्रामीण इलाके में टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दें और उनके हाथ में ड्रोन भी रखें, जिसके साथ वो पूरे फसल का आंकड़ा ले सकते हैं ड्रोन को उपयोग करते हुए, और ड्रोन के साथ फर्टिलाइजर भी चिपका सकते हैं जमीन में और हमारे क्रॉप के ऊपर। इसका कार्यक्रम भी नमो ड्रोन दीदी का स्कीम लॉन्च किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। उसमें 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देने का कार्यक्रम भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा हो रही है। उसमें से मैं बोल सकती हूं बहुत प्रयत्न हो रही है। मैं इससे पहले एक विषय आपको लखपति दीदी का विषय रखी, हरियाणा में उसका फायदा हुआ है क्या? जरूर हुआ। 62,700 लखपति दीदी हरियाणा की इस धरती में हैं। लखपति दीदी 62,700 हरियाणा में। मैं आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, मगर ये बीमा सखी के द्वारा इस पावन भूमि से हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 25,000 बीमा सखी का उद्घाटन आज हो रही है। देश भर में अच्छा नंबर में महिला आगे सशक्त हो, आगे बढ़े, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। उनके मैं सर झुक करके धन्यवाद कह रही हूं। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। देवी और सज्जनों,
देश के अग्रणी राज्यों में से एक हरियाणा विकास की राह पर रफ्तार पकड़ चुका है। तीसरी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली हरियाणा सरकार ने सत्ता संभालते ही महिला कल्याण के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। ये वही सरकार है देवी और सज्जनों, जिसने देश में सर्वप्रथम पंचायतों में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों के सपनों को पूरा करने में जुटी है हरियाणा की डबल इंजन की सरकार। मैं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से सम्मानपूर्वक आग्रह करती हूं कि कृपया इस अवसर पर अपने मनोभाव हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सम्मान के योग भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग परम श्रद्धेय जन जन के प्रिय, जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया है, ऐसे यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय जी, हमारी आदरणीय केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय शहरी एवं ऊर्जा मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारी मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारी हरियाणा सरकार की मंत्री कुमारी आरती राव जी, और उपस्थित आज इस बीमा सखी योजना के शुभारंभ पर आज लाखों की संख्या में बहनें पानीपत की इस ऐतिहासिक भूमि पर पधारी हैं। आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर मैं मन से स्वागत करता हूं। हरियाणा त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है
तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है, तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए पुरुषों की बजाय हमारे हरियाणा प्रदेश से माताएं, बहनें और बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं। मुझे आज से लगभग 9 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जब आपने 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डटकर काम किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पानीपत की इस पावन भूमि से की गई नई शुरुआत से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विकसित भारत के 4 स्तंभ माने हैं, महिलाएं उनमें से एक हैं। आपने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए और भी ठोस कदम उठाए हैं। आपने हमें प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम वो किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा में हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आपके ही दिशा निर्देश में 77 सरकारी कॉलेज
हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। इनमें से 32 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हर घर हर गृहिणी योजना में गरीब परिवारों में को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 56,000 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से 6,50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। राशन डिपो के आवंटन में भी हमने हरियाणा में महिलाओं को 33% उसमें आरक्षण देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार युवाओं के कल्याण के लिए रोजगार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं और बेटियों को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने गत 29 अक्टूबर को रोजगार मेले में हमारी हरियाणा की इस पहल की सराहना करके हमें प्रोत्साहित किया है। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए गरीबों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी के पेशेंट रोगी थे, ऐसे सभी लोगों को जो किडनी के पेशेंट थे उनको सरकारी हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस देने की सेवाएं भी हमने आपके दिशा निर्देश में शुरू की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो योजना 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो शुरू की है, उसका भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लाभ मिल रहा है और उसमें हमारी माताएं जो 70 साल से ऊपर की हैं उनका फ्री में इलाज करने की योजना 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय जो आपने किया है वो सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम विकसित भारत बनाने में हरियाणा में अधिकतम योगदान के लिए कृत संकल्प हैं। इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना में भी हम अपना अधिकतम योगदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पधारने के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और मैं बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। धन्यवाद, आप यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः आपका हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो एक बड़ी योजना बीमा सखी योजना देश की हमारी बहनों के लिए आप लॉन्च करने के लिए आज उनको समर्पित करने के लिए आए हैं, मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मान्यवर, जब उम्मीदों को अवसर का साथ मिलता है, जब सपनों को अपनों का हाथ मिलता है, तब वो सफलता कामयाबी का शिखर चूमता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी करनाल के मुख्य परिसर की नींव रखेंगे। ये विश्वविद्यालय एक शैक्षिक पहल से कहीं अधिक है।
कि प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय अनुसंधान के साथ जोड़कर बागवानी के क्षेत्र में सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ही विवेकपूर्ण दूरदर्शी सोच जब पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बुलंद नारे के रूप में देश भर में गुंजायमान हुई, तो नजरिए में परिवर्तन की ऐसी मशाल रोशन हुई जिससे देश की बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान का जीवंत परिवेश हासिल होने लगा। हरियाणा देश के समक्ष एक सफलतम उदाहरण बन गया। आपको दिखाएंगे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता पर एक शॉर्ट फिल्म, जिसके साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुग्रह करती हूं कि रिमोट का बटन दबाकर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास करें। हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 28 नवंबर 2016 को करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक्ट बनाया। फल, फूल, सब्जी जैसे बागवानी के विषयों की उच्च शिक्षा और शोध को समर्पित ये देश का 7वां और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का पहला विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पानीपत में इसके मुख्य परिसर की आधारशिला रख रहे हैं। इसके सारे भवन ग्रीन श्रेणी की जल संरक्षण की तकनीकों से लैस होंगे। 65 एकड़ में फैले इसके मुख्य परिसर और 430 एकड़ में 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों की लागत 700 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने बागवानी को किसानों की आय बढ़ाने और नवाचार, उद्यमशीलता और ग्रामीण रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा है। उन्होंने देश की पोषण सुरक्षा को बढ़ाने और बागवानी मिशन में आधुनिक तकनीकों जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को शामिल करते हुए विशेष योजनाएं लागू की हैं। हरियाणा में बागवानी के किसानों को घाटे से बचाने के लिए भावांतर भरपाई और आपदा के हर जाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा जैसी बेमिसाल योजनाएं भी मौजूद हैं। राज्य के 12 बागवानी उत्कृष्टता केंद्रों ने भी फल सब्जी की उम्दा किस्म के पौधे किसानों को सुलभ करवाने की मिसाल बनाई है। हरियाणा की बांस आधारित सब्जियां, ग्रीन हाउस खेती, सिंचाई के लिए तालाब, आधुनिक पैकेजिंग हाउस में प्रगति शानदार रही है। बेहतर मार्केटिंग के लिए पिंजौर में सेब और सब्जी मंडी बन चुकी है। गन्नौर में भी अत्याधुनिक मंडी निर्माणाधीन है। राज्य की कुल फसलीय भूमि में सकल बागवानी का दायरा अब 6.25% हो गया है। बागवानी से किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करती डबल इंजन सरकार के प्रयासों को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय और मजबूती देगा। दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं। मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहनों बेटियों को समर्पित कई योजनाएं लागू हैं, जिनमें आज राज्य की नारी शक्ति के स्वाभिमान की मुस्कान दिखाई देती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए 21,000 रुपए का निवेश किया जाता है। योजना से 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना से महिलाओं को उद्यमिता से जुड़कर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला है। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया और राज्य में अब तक 1,45,000 महिलाएं लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण देने के संकल्प से नमो ड्रोन दीदी के विजन को हरियाणा में मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से 8,60,000 महिलाओं को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत गर्भवती माताओं को फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क दिया जाता है। वर्ष 2017 में जिला यमुनानगर को बालिका शिक्षा में अनुकरणीय कार्य के लिए और वर्ष 2018 में जिला सोनीपत को PCPNDT एक्ट को लागू करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बेटियों को बचाने और सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे इन समग्र और सतत प्रयासों से हरियाणा आने वाले वर्षों में समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत नारी शक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की ये यात्रा हरियाणा में यूं ही जारी रहेगी। आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। हर संकट में बीमा सखी होगी आशीषा, सुरक्षित भविष्य की दिखाएगी दिशा, आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर स्वशक्ति की ऋचा। देश की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए उन्हें स्वावलंबन की ताकत के साथ सम्मान का जीवन जीने की राह दिखाने वाली योजना है LIC की बीमा सखी महिला करियर एजेंट योजना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है देवता वहीं निवास करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान और भागीदारी ये हमारी परंपरा और पहचान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का विजन दिया, जिसके तहत बीते 10 वर्षों में महिलाओं के लिए समग्र प्रयास किए गए हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला, आवास, नल से जल, शौचालय जैसी पहलों से देश की करोड़ों माताओं बहनों का जीवन गरिमापूर्ण बनाना हो, या जन धन, मुद्रा, महिला स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी जैसे कई कदमों से उन्हें बैंक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी पहल हो। भारत सरकार महिलाओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हर क्षेत्र में भारत की बेटियां राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन रही हैं। इसी कड़ी में एक नई पहल है
LIC के सौजन्य से बीमा सखी योजना के तहत न्यूनतम 18 वर्ष व 10वीं पास महिलाएं LIC से ट्रेनिंग लेकर एजेंट बनेंगी। इन्हें योजना के नियम अनुसार स्टाइपेंड भी मिलेगा। पहले वर्ष 7,000 रुपए प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए प्रति माह और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए प्रति माह। 3 साल की अवधि के बाद भी एजेंसी जारी रहेगी और नियम अनुसार कमीशन भी मिलता रहेगा। अगले 3 सालों में 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी बनाने का संकल्प लिया गया है। पात्र महिलाएं LIC की नजदीकी शाखा या पोर्टल www.licindia.in पर विजिट कर बीमा सखी बन सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समृद्ध नारी शक्ति के विजन को मजबूती देने में ये योजना अहम भूमिका निभाएगी। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। महिलाओं के सशक्तिकरण में एक नए युग का आह्वान है LIC की बीमा सखी योजना। वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की अग्रदूत बनेंगी ये बीमा सखियां। अगले 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक बीमा सखियों को नामांकित करने का लक्ष्य है और आज की तारीख में 25,000 महिलाएं तैयार हैं बीमा सखी बनने के लिए। इनमें से कुछ बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक निवेदन करती हूं। सबसे पहले मंच पर ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आ रही हैं अनीता। आप बेंगलुरु से हैं, 10वीं पास हैं और बीमा सखी बनकर अपना करियर बनाना चाहती हैं।